Dear student, I am Santosh Misra, and in this video I am going to discuss the accounting treatment of accumulated profit and reserve. There are two types of accounting treatment of reserves. First, if partner wants to distribute the reserve, and second is if they do not want to distribute the reserve. If they want to distribute the reserve, suppose that there are certain balance in general reserve account and PL account. At that time, credit balance in PL account. At that time, all the reserves will be debited and to partners capital account, to old partners capital account in their old ratio. If in the partnership firm there will any loss, accumulated loss, suppose that is a debit balance of PL account, in that situation partners capital account debit to PL account or to accumulated loss. Accumulated loss maybe as like advertisement suspense account, debit balance of PL account, then partners capital account will be debited and all the reserves accumulated loss will be credited in their old in old partner in their old ratio. If they do not want to distribute the reserve, then the accumulated reserves, the total of accumulated reserve will be distributed between the partner in their gaining or sacrificing ratio. Then gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital account. तो ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स है, ये हम लोग ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर जो चेंज इन पीएसआर था, थर्ड चैप्टर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर था, उसमें हम लोगों ने कवर कर लिया. एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है. देखिए सर कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. सर क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन की सुंदरता देखिए. क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 4.118. ABC are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. C retires and A and B agreed to share future profit in the ratio of 6:4. Goodwill is to be taken at 2-year purchase of the average profit of last 5 years, which were 10,000, 25,000, loss of 15,000, 36,000 and 44,000 respectively. मतलब इस क्वेश्चन में हमको गुडविल को क्या करना है, वैल्यू करना है. ओ सर गुडविल वैल्यू नहीं है, तो हम गुडविल को क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे. ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, दो ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये लॉस है. लॉस माइनस हो जाता है और जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपका 1 लाख आएगा. 1 लाख डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20,000. देन एवरेज प्रॉफिट इज 20,000 एंड गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 2 years. देन 20,000 into 2 is equal to 40,000. 40,000 is the value of goodwill. Then C's share in goodwill is 40,000 into 2 by 10. C's share, their old ratio is 5:3:2. Then C's share will 2 by 10. Then 88,000. 8,000 will be distributed in remaining partner A and B in their gaining ratio. Sir, how can we find the gaining ratio? New ratio minus old ratio. New ratio is, it is also given in the question, new ratio is 6:4. Then 6 by 10 minus old ratio 5 by 10 is equal to 1 by 10 and 4 by 10 minus 3 by 10 is equal to 1 by 10. तो इस क्वेश्चन में 1:1 आपका गेनिंग रेशियो आ गया. सर ये गेनिंग रेशियो आ गया, दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं
इसलिए हम 1/10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस 8000 जो सी का शेयर है उसको हम लोग 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का होता है, ये पूरा रिवीजन है। तो हमारा आ गया, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 4000 और 8000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। तो ये हमारा हाफ पार्ट जो है क्वेश्चन का कवर हो गया। अब देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, तो रिजर्व्स की बात आती है। तो एट द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म, जनरल रिजर्व 1,20,000। अब देखिए जनरल रिजर्व 1,20,000 है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया मतलब लॉस दिया 30,000 का, और सी का कैपिटल अकाउंट बोल रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट। तो सर जो रिजर्व दिए हुए हैं तो इनका हम क्या करेंगे, तो रिजर्व को कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ये मानेंगे कि रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। केस नंबर 1, रिजर्व क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, देन जनरल रिजर्व इसका क्रेडिट बैलेंस रहता है। अब इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे सर, इसको हम डेबिट कर देंगे, और ये टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर इसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं भाई, ये जनरल रिजर्व ये क्या है सर ये क्या है, ये गुल्लक है बेटा, ये दिख रहा है ना गुल्लक, ये गुल्लक है। अब गुल्लक में हम अपने प्रॉफिट से पैसा इसमें डाल रहे थे, तभी जाके ये जनरल रिजर्व बना। अब जब ये गुल्लक फूटेगा रिटायरमेंट पर तो ये सब में बटेगा, और किस रेशियो में बटेगा सर, ये हमारे ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल 1,20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में, दैट इज 5:3:2, और ये आपका आ गया। अब देखिए जो लॉस है तो लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हाँ सर क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट हमने ये डेबिट कर दिया, और आपका इतना ये आ गया, और इस 30,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लॉस है, लॉस भी सब में बटेगा। बात आ जाती है सीज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाएंगे, तो बाय बैलेंस बीडी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख इसका बैलेंस था रिटायरमेंट वाले दिन, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था। अब ए बाई एस कैपिटल, बाई बीज कैपिटल, ये गुडविल के लिए, उसका गुडविल का हिस्सा उसको दिया जाएगा, और ये जनरल रिजर्व में उसका जो हिस्सा आया वो आया। चूंकि लॉस था तो लॉस से कैपिटल अकाउंट इसका रिड्यूस कर जाएगा, ये आपका डेबिट हो गया, और ये जो भी बैलेंस बचता है आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, आप चाहें तो इसको कैश में पे कर दें, और चाहें तो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो हमने यहाँ पे इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 2,26,000, और टोटल आ गया 2,32,000, 2,32,000। ये आपका टोटल एक तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब सपोज दैट मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में कह दे कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देयर रिजर्व्स, तो उस केस में क्या करेंगे, तो भाई उस केस में कुछ करना नहीं है। उस केस में हम जो मेरा जनरल रिजर्व का बैलेंस है इसको ले लेंगे, गुडविल का ले लेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, और भी यदि कोई रिजर्व रहेगा तो उसको हम जोड़ देंगे, और यहाँ पे उसका सम जो कर देंगे। अब इस सम को हम लोग गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में डायरेक्ट बांट देंगे। जैसे मान लीजिए आपका गुडविल कितना था सर, मेरा गुडविल था 1,20,000, अरे जनरल रिजर्व, और गुडविल कितना वैल्यू हुआ था, गुडविल पूरे फर्म का टोटल वैल्यू हुआ था 40,000, तो यहाँ पे हमारा आ गया 40,000। अब मेरा ये हो गया 1,60,000, तो 1,60,000 को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1/10 इंटू 1/10 करेंगे, इंटू 1/10, और सी का जब आप निकालेंगे तो अब न्यू उसका 0 है, और ओल्ड उसका कितना था, सी का जैसे न्यू इसका 0 न्यू रेशियो, और ओल्ड इसका 2/10, तो ये आ जाएगा -2/10, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इससे 2/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो गेन कर रहे हैं दोनों पार्टनर, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और ये एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। इसी तरीके से यदि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, या एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और उस पर कोई क्लेम है, तो हम कुछ करेंगे नहीं, क्लेम को हम
जितना क्लेम दिया हुआ है उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन ही रिजर्व आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 1,20,000 दिया था और क्लेम जो है 20,000 था, तो हम 20,000 इसमें से माइनस कर देंगे क्लेम का और ये हो जाएगा 1 लाख। अब इसी हम 1 लाख को क्या कर देंगे, बांट देंगे। यदि वो इफ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व देन हम एंट्री पास कर देंगे WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। तो क्लेम में प्रोविजन फॉर क्लेम में 20,000 चला जाएगा और बाकी जो 1 लाख है वो तीनों में उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आप लोग ऑलरेडी इसको चैप्टर 2 में और आपका चैप्टर 3 में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये था। अब फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 तक आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।